Physics chapter 5 Upthrust in Fluids, Archimedes Principle and Flotation. The first part of the chapter is Upthrust and Archimedes Principle. Listen to this very carefully. I'm sure you all have experienced upthrust. When a body is partially or wholly immersed in a liquid, an upward force acts on it. This upward force is known as upthrust. Upthrust. Thrust तो पता है तुमको, force होता है perpendicular force. Upthrust is the same perpendicular force, normal force, but in upward direction. और buoyant force. ये जो buoyant force, ये जो word है buoyant force. Let me write it. B-U-O-Y-A-N-T. Buoyant. ये जो वर्ड है या फिर और एक वर्ड है बोयंसी, BUOYANCY, बोयंसी. ये जो दो वर्ड्स है ये आए हैं BUOY, बॉय. दिस इज नोन एज बॉय. बॉय का मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो पानी में फ्लोट करता है. बॉय. तुमने देखा होगा कि स्विमिंग पूल में एक ऐसे बॉल्स वाली एक थ्रेड होती है जो डीप एंड और शैलो एंड के बीच में, जहाँ से डीप एंड शुरू होता है जनरली, वहाँ पे स्विमिंग पूल में ऐसा वो लोग लगाते हैं बीच में, सो दैट नो बडी क्रॉसेस ओवर एंड गोज टू द डीपर एंड. मतलब ये इसके बाद डीपर एंड शुरू होगा, सो सेफ्टी के लिए ऐसे ये फ्लोट करते रहते बॉयज. इसको बोलते हैं बॉयज. ओके. तो ये कोई भी चीज जब फ्लोट, मतलब फ्लोटिंग चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये वर्ड बॉय का यूज होता है. और बोयंट फोर्स is the force which makes anything float on a fluid, a liquid, a fluid, anything, not only water. ठीक है. So buoyant force or upthrust is something which has a tendency to make body floats in that particular fluid when that body is partially or wholly immersed in a liquid. तुम स्विमिंग पूल में जाते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वेट ऐसे कम हो गया है. सम पीपल हैव द एबिलिटी टू फ्लोट ऑन वाटर. मतलब इफ दे लाई डाउन ऑन वाटर दे कैन इजीली फ्लोट, दे कैन स्विम इजीली. तो ये फ्लोट कैसे कर सकते हैं? पानी में जंप मारना भी इजी होता है, मतलब यू डोंट फील दैट. जब तुम पानी में जंप मार के नीचे आते हो, you don't come down immediately, you come down slowly. You know why? Because there is an upward force acting on your body which is inside the water, complete wholly or partially immersed, due to that buoyant force, upward force, upthrust. इसका जो सिंबल है दैट इज एफ बी. एफ मतलब फोर्स, बी मतलब buoyant, buoyant force, एफ बी. Thus, the upward force exerted on a body by the fluid in which it is submerged. Upward force exerted on a body by the fluid in which it is submerged is called the upthrust or buoyant force. The property of liquid to exert an upward force on a body immersed in it is called buoyancy. Buoyancy is the property of liquid to exert an upward force on a body immersed in it. किसी भी बॉडी को जब हम लिक्विड में इमर्स करते हैं तो वो लिक्विड वो बॉडी के ऊपर अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है. ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की टू एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स, उसको बोलते हैं बुoyancy. दिस प्रॉपर्टी कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स. एक तो है पुशिंग एन एम्प्टी कैन इनटू वाटर. कोई भी एक एम्प्टी कैन ले लो, उसका माउथ क्लोज कर दो एयर टाइट स्टॉपर से, और फिर उसको टब फिल्ड विथ वाटर में अंदर पुश करो. When you will push it, it will come back again to the surface and it floats with a large portion of it above the surface of water and only small portion of it below the surface of water. जब तुम उसको पानी के नीचे लेके जाते हो तो you will feel that something is pushing that can up. That is the upthrust, the buoyant force in the upward direction. Pushing a cork into water. Cork जो होता है ना, cork, it's made up of a material which is very light. Its density is very less, even less than water. So when you push it inside the water and you leave it, release it, it immediately comes to the surface, rises above the surface, and then continues to float in the surface, on the surface. So that is also due to the upthrust.
ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लोगों ने साइंटिफिकली दिया है, बहुत सारे मैथमेटिकल वर्ड्स यूज किए हैं, टर्म्स यूज किए हैं। मैं इसको थोड़ा सा इजीली एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो ये चैप्टर में आगे हम लोग इसको इजीली एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे इसको, ठीक है। तो हर चीज टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ना जरूरी नहीं है। एज पर मी, जब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं अपने वर्ड्स भी यूज करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बिकम एक्सट्रीमली टेक्निकल फॉर यू फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले तो समझो फिनोमेना क्या है और उसको रिलेट करो विद द एक्सपीरियंसेस विच यू हैव ऑलरेडी हैड विद द अपथ्रस्ट और वट एवर टॉपिक वी आर स्टडिंग। अगर तुम्हें वो रिलेट हो गया कि हाँ यार अपथ्रस्ट तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जैसे कॉर्क को पानी में डुबाने वाला या एम्प्टी कैन को पानी में डुबाने वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ही नेचुरल है, इसमें अपथ्रस्ट का एक्सपीरियंस तुरंत हो जाता है। बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसको मुझे थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ेगा, ताकि इसका जो मैथमेटिक्स है वो तुम्हें डिफिकल्ट ना लगे, ठीक है। अच्छा, तो इसके एक्सप्लेनेशन को हम थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं। ओके, सो देर आर थ्री कंडीशंस विच यू सी ओवर हियर। In the first condition, the cork or the piece of wood is floating naturally above the surface of liquid or water. ठीक है। इन दिस कंडीशन, जैसे जब ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है, जब कोई भी बॉडी जब वाटर के या लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट करता है, द वेट ऑफ द बॉडी विच एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, एंड अपथ्रस्ट विच इज एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होता है, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होता है। बट व्हेन यू पुश, व्हेन द बॉडी इज पुश्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे फ्लोटिंग बॉडी को जब नीचे की तरफ पुश करते हैं तो ये क्या करती है, ये पानी के अंदर जाती है, ये बॉडी थोड़ी और ज्यादा सबमर्ज होती है। इस केस में क्या हो जाता है, वेट तो उतना ही रहता है, लेकिन जो अपथ्रस्ट है वो बढ़ जाता है। मतलब जितना ज्यादा तुम उस बॉडी के वॉल्यूम को सबमर्ज करोगे पानी के अंदर, उतना उतना ज्यादा वो उसके ऊपर अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा। अगर उसको पूरा का पूरा सबमर्ज कर दो तो अपथ्रस्ट और बढ़ जाएगा, अपथ्रस्ट विल बी मोर ग्रेटर, मच मोर देन द सेकेंड केस, ठीक है, मोर देन केस टू। केस टू से भी ज्यादा अपथ्रस्ट यहां पे होगा, क्योंकि अब पूरा वॉल्यूम बॉडी का पानी के अंदर है। मतलब तुम्हारा जितना बॉडी का वॉल्यूम पानी के अंदर होगा उतना ज्यादा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये तीनों केस में अपथ्रस्ट सबसे ज्यादा इस केस में है। इस केस में जब तुम इसको रिलीज करोगे तो एकदम से ये ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा और वैसे वापस पोजीशन वन जैसा फ्लोट करने लगेगा। सो इसका इसका ये एक तुम बोल सकते हो ये ऑब्जर्वेशन एक प्रूफ है कि जितना ज्यादा बॉडी का वॉल्यूम पानी के अंदर इमर्स्ड होता है उतना ज्यादा अपथ्रस्ट वो एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड एट एज ऑफ दिस पॉइंट, एज ऑफ नाउ। इससे ज्यादा तुम्हें इसके डिटेल में जाने की अभी जरूरत नहीं, हम लोग जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे चैप्टर में अपथ्रस्ट के कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, सिर्फ लिक्विड्स का अपथ्रस्ट नहीं होता है, गैसेस भी फ्लूइड्स है, और गैसेस आल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बोयंसी। मतलब किसी भी बॉडी को उसको इमर्स करेंगे, किसी भी बॉडी को व्हेन वी इमर्स, जस्ट अ मोमेंट, सो किसी भी बॉडी को हम जब इमर्स करते हैं गैस में, तभी भी वो अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करता है। All the objects, including ourselves, are also acted upon by a buoyant force due to air, but we do not feel it. Why do we don't feel it? Because it is negligibly small as compared to our own body weight. On the other hand, a balloon filled with hydrogen or any other gas less denser than air, for example helium, अगर किसी बलून में हमने हीलियम या हाइड्रोजन भरा तो वो बहुत एविडेंटली अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करता है। व्हेन इट इज रिलीज्ड इन एयर वो सीधा ऊपर चला जाता है बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट। सो राइजिंग ऑफ बलून इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अपथ्रस्ट। अच्छा, मुझे बताओ ये बलून कितने हाइट तक राइज करता है? इनडेफिनेटली। क्या स्पेस में चला जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट गोज टू अ सर्टेन लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर till the density of the air
at that level of the atmosphere and the density of the gas filled in the balloon becomes the same. जब दोनों का डेंसिटी सेम हो जाएगा तब वो राइज होना बंद हो जाएगा एंड इट विल बी स्टेशनरी ओवर दैट पॉइंट। और वहां पे वो स्टेशनरी रहेगा नहीं, वहां पे वो बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर का गैस का प्रेशर में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। द इनसाइड प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ द बलून विल बी मच हायर देन द आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस हाइट तक पहुंचते पहुंचते वो पहले ही बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सो राइजिंग ऑफ बलून इज ड्यू टू द buoyant फोर्स exerted बाय एयर इन विच द बलून इज रिलीज्ड। ठीक है, मतलब गैसेस भी buoyant फोर्स या buoyancy की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं। कंडीशन फॉर अ बॉडी टू फ्लोट और सिंक इन अ फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब कोई भी बॉडी को, जब हम लोग इमर्स करते हैं फ्लूइड के अंदर, वाटर या गैस या लिक्विड, किसी भी लिक्विड या गैस के अंदर, तो उसके ऊपर दो वेट एक्ट करते हैं। एक है W, वो बॉडी का खुद का वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, राइट। वेट तो कोई, तुमने पढ़ा है, वेट इट्स अ लेजिटिमेट क्वांटिटी जो हमेशा हर एक बॉडी पे एक्ट करती है, विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। एंड एफ बी या एफ डैश बी यहाँ पे लिखा है, बट एफ बी अगर पढ़ेंगे तो इट इज अपथ्रस्ट buoyant force which acts in a vertically upward direction opposite to the direction in which the weight acts. So we have noticed that upthrust depends on the submerged portion of the body. जितना submerged portion ज्यादा होगा उतना upthrust भी ज्यादा होगा। ठीक है, it increases as the submerged portion of a body inside the fluid increases and becomes maximum when the body is completely immersed inside the fluid. तो ये फिगर 5.1 है। इट शोज अ बॉडी हेल्ड कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड विथ टू फोर्सेस W एंड F डैश बी एक्टिंग ऑन इट। अब इस केस में ये तुम डायग्राम जो देख रहे हो, यहाँ पे दो फोर्सेस तो तुम्हें दिख रहा है, मैक्सिमम अपथ्रस्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, the maximum buoyant force F dash B can be greater than, equal to or less than the weight W of the given body। मतलब अपथ्रस्ट की वैल्यू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करती है जिसमें वो बॉडी को इमर्स किया है। ये F डैश बी की वैल्यू W से ज्यादा हो सकती है, W से कम हो सकती है, या W से इक्वल हो सकती है, इट डिपेंड्स। तो पहला केस हम लोग लेते हैं जब F डैश बी मैक्सिमम अपथ्रस्ट की वैल्यू वेट से ज्यादा है, या फिर F डैश बी की वैल्यू वेट से इक्वल है। तो बॉडी क्या करेगा? फ्लोट करेगा। मतलब बोयंट फोर्स और वेट ऑफ द बॉडी जब इक्वल होंगे, या फिर बोयंट फोर्स वेट ऑफ द बॉडी से ज्यादा होगा, तो बॉडी सिंक नहीं करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर बोयंट फोर्स ज्यादा है वेट ऑफ द बॉडी से, तो बॉडी विल फ्लोट पार्शियली इमर्स्ड with only that much part of it inside the liquid, the upthrust FB due to which becomes equal to the weight W of the body। मतलब मैं तुम्हें ये बहुत टेक्निकल टर्म्स में ये लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, विच इज लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यहाँ पे एक्चुअली डायग्राम है ऑलरेडी हमारे पास, हम इससे ही समझते हैं। ठीक है, हम ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं एंड ओके ग्रेट। अब यहां पे देखो, इज दिस बॉडी फ्लोटिंग? यस इट इज फ्लोटिंग। हाउ इज इट फ्लोटिंग? मेरा क्वेश्चन है हाउ इज द बॉडी फ्लोटिंग? सो द आंसर इज द बॉडी इज फ्लोटिंग पार्शियली अबाउ द लिक्विड सरफेस एंड पार्शियली बिलो इट। इन एनी सच केसेस, दैट इज केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 सिमिलर है। केस नंबर 1 और 2 में body is partially floating above the surface of the liquid and it is partially immersed in the liquid. In both these cases, the buoyant force Fb is greater than the weight of the liquid, is greater than the weight of the liquid। ठीक है, इसलिए ये बॉडी फ्लोट करेगी। बट जब भी buoyant फोर्स वेट ऑफ द लिक्विड से ज्यादा है, तब बॉडी का कुछ पार्ट लिक्विड के बाहर होगा और बॉडी का उतना ही पार्ट लिक्विड के अंदर होगा। लेट मी टेल यू अगेन, बॉडी का उतना ही पार्ट लिक्विड के अंदर होगा। वेर इज द रेड पेन यार? पेन यार मेरा पता नहीं कहाँ चला गया रेड पेन। एक मिनट, गायब हो गया रेड पेन।
ओके ठीक है। सो बॉडी का उतना ही पार्ट लिक्विड के अंदर इमर्स्ड होगा। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पार्ट है तो मैं उसको रेड इंक से बता रहा हूँ। बॉडी का उतना ही पार्ट लिक्विड के अंदर इमर्स होगा जितना पार्ट का वेट बोयंट फोर्स से इक्वल है। ठीक है, मतलब बॉडी का सिर्फ इतना पार्ट, ये बॉडी का सिर्फ इतना पार्ट का वेट बोयंट फोर्स से इक्वल है। बाकी बॉडी का पूरा वेट बोयंट फोर्स से कम है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। जस्ट मोमेंट, इसका मीनिंग मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता दूं। यस, आई एम करेक्ट। इन अ वे आई एम सेइंग दैट कि बॉडी का इतना ही पार्ट इमर्स्ड है लिक्विड के अंदर। मतलब बॉडी का जो इमर्स्ड पार्ट है उसका इट मीन्स दैट इट बॉडी का सिर्फ इतना पार्ट अपथ्रस्ट को बैलेंस करने के लिए इनफ है। बॉडी का इतना ही पार्ट अपथ्रस्ट को बैलेंस करने के लिए इनफ है, इसलिए इतना ही पार्ट इमर्स हो रहा है। ठीक है, बॉडी का जब इतना सा पार्ट इमर्स होगा तो उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट एक्ट करेगा वो पूरे बॉडी के वेट को बैलेंस कर लेगा। बॉडी का थोड़ा ज्यादा पार्ट इमर्स होगा तो मतलब बॉडी थोड़ा हैवी है। ठीक है, तो बॉडी का ज्यादा पार्ट इमर्स करने से अब जो अपथ्रस्ट इसके ऊपर एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, अब वो बैलेंस करेगा पूरे बॉडी के वेट को जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और बॉडी का अगर पूरा का पूरा बॉडी इमर्स हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, पूरे बॉडी को इमर्स होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर फॉर द अपथ्रस्ट टू बैलेंस दिस बॉडी, इन ऑर्डर फॉर द अपथ्रस्ट टू बैलेंस दिस बॉडी। तो मतलब ये थर्ड केस में, इन दिस थर्ड केस वी कैन से दैट द अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ये पहले दो केसेस में अपथ्रस्ट की वैल्यू वेट ऑफ द बॉडी से ज्यादा है। बॉडी का कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ पार्ट जब इमर्स होता है तो इतना अपथ्रस्ट मिल जाता है बॉडी को कि वो फ्लोट करता है पार्शियली अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर। बट कुछ बॉडीज हैवी होते हैं, उनको फ्लोट करने के लिए उनको लिक्विड के ऊपर फ्लोट करने के लिए पूरा का पूरा बॉडी को इमर्स रहना पड़ता है पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, तब जाके उतना अपथ्रस्ट उस पर जनरेट होता है जो वेट ऑफ द बॉडी से इक्वल हो जाता है एंड द बॉडी स्टार्ट्स फ्लोटिंग बट कंप्लीटली इमर्स्ड इनसाइड द लिक्विड। तो ये तीन केसेस है जिसको हमने समझा, जहां पे तीनों में फ्लोटिंग बॉडीज है, मैं तीनों को फ्लोटिंग बॉडी बोलता हूं, बट कहीं पे अपथ्रस्ट ज्यादा है, कहीं पे अपथ्रस्ट इक्वल है वेट से, सिर्फ इतना फर्क है। अच्छा, फोर्थ एग्जाम्पल जो इसका है, फोर्थ एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। फोर्थ एग्जाम्पल में अपने पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड है। अभी तो फ्लोटिंग बॉडीज का एग्जाम्पल तुमने पढ़ा, जो मेन एग्जाम्पल है व्हेन डज द बॉडी सिंक, तो एक बॉडी सिंक हो गया है, द बॉडी है संकन। इसका मतलब क्या है, ये उसका वेट है बॉडी का और ये उसके ऊपर अपथ्रस्ट है। आई एम सॉरी, ये एफ बी मैंने नीचे लिख दिया है, सॉरी। वेट यहाँ पे है एंड अपथ्रस्ट यहाँ पे है, एंड इन दिस केस द वेट ऑफ द बॉडी इज मोर देन द बोयंट फोर्स। बॉडी पूरा का पूरा इमर्स हो गया, फिर भी अपथ्रस्ट वेट को कंपेयर नहीं कर पा रहा है, वेट इज मोर देन द अपथ्रस्ट एंड द बॉडी गोज डाउन, सिंक्स। अच्छा, एक चीज और नोट करना, बॉडी अगर पूरा इमर्स्ड है, उसको और ज्यादा इमर्स करोगे तो अपथ्रस्ट की वैल्यू बढ़ती नहीं है, अपथ्रस्ट की वैल्यू उतनी ही रहती है। मतलब अपथ्रस्ट इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम रहेगा, दोनों पे सेम अपथ्रस्ट है। हाँ, अगर बॉडी का वेट ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ सिंक हो जाएगा। अगर वेट इक्वल है टू द बोयंट फोर्स देन वो फ्लोट करेगा ऐसे। ठीक है, सो ये चार केस है जो फ्लोटेशन और अपथ्रस्ट के बारे में तुम्हें बहुत सारा नॉलेज देंगे, एंड आई होप दीज 4 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। यहां पे बोला है इफ एफ बी इज लेस देन वेट द बॉडी विल सिंक ड्यू टू द नेट फोर्स। हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है नेट फोर्स। इसका भी मैं बात बता देता हूँ तुमको, अदरवाइज दैट विल स्टे, क्योंकि ये टेक्निकल बातें जनरली टीचर अवॉइड करते हैं, क्योंकि इट्स फॉर सी फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग इट इज परफेक्टली राइट, but I don't know how to explain it to you because then it becomes technical.
and that too in the live in the video lecture, it is very technical because I don't know what interpretation you are having. So उसके बाद जब हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. ठीक है. सो ओके, व्हाट आई वांट टू टेल यू नाउ, that in these three cases, case number 1, case number 2 and case number 3, the body is floating, and in floating bodies, net force exerted on the body is always zero. In floating bodies, net force exerted on the body is always zero. बॉडी पे हमेशा जो नेट फोर्स एक्सर्ट होता है वो क्या होता है? जीरो होता है. नेट फोर्स का मतलब क्या है? नेट फोर्स का मतलब है उस पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसका सम. कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? एक तो वेट है और एक बोएंट फोर्स है, क्योंकि इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो हम लोग माइनस लिखेंगे. इनका जो सम है या फिर इनका डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा? जीरो. मतलब वेट और बोएंट फोर्स हमेशा इक्वल होंगे. हाँ, इस केस में क्या होगा? जितना सबमर्ज पार्ट है वही बॉडी का सबमर्ज पार्ट ही बोएंट फोर्स को बैलेंस कर लेता है. ठीक है. सो बोएंट फोर्स इज डेफिनेटली ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी, बट बिकॉज द बॉडी इज फ्लोटिंग वी कैन से द नेट फोर्स इज जीरो. हमेशा याद रखना, फ्लोटिंग बॉडीज में नेट फोर्स exerted on the body is always zero. बट यहां पे क्या है पता है? the weight minus fb is not zero. it's a positive quantity. मतलब वेट ज्यादा है. अगर वेट ज्यादा है तो मतलब बॉडी सिंक करे. ठीक है. वेट इज ग्रेटर देन buoyant फोर्स, मतलब द बॉडी विल सिंक. तो ये नेट फोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर रखना. ये जो अपथ्रस्ट है वो भी एक फोर्स है. ये buoyant फोर्स या अपथ्रस्ट भी एक फोर्स ही है, और इसका यूनिट क्या है? न्यूटन या फिर केजीएफ. Okay. Characteristic properties of upthrust देखो. Upthrust has the following three characteristic properties. Larger the volume of body submerged in the fluid, greater is the upthrust. ये हमने देखा था वो टिन कैन के एक्सपेरिमेंट में. टिन कैन मतलब जो एम्प्टी कैन को हमने वाटर के अंदर पुश किया, वो वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जितना ज्यादा वॉल्यूम किसी भी बॉडी का सबमर्ज करेंगे हम फ्लूइड में, उतना ज्यादा अपथ्रस्ट उसके ऊपर एक्सर्ट हो. ठीक है. एक बार पूरा का पूरा बॉडी का वॉल्यूम पानी के अंदर सबमर्ज हो गया, फिर उसको और नीचे लेके जाओ तो अपथ्रस्ट की वैल्यू बढ़ती नहीं है, उतनी ही रहती है. सो द क्वांटिटी ऑफ अपथ्रस्ट और द वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट रिमेन्स द सेम once the whole body is immersed in the liquid. If you take it to a greater depth, to much more deeper, it's the upthrust on it will not change, it will remain constant. ठीक है. फॉर सेम वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड, मोर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट. तुम्हारे पास दो फ्लूइड है, एक वाटर है और एक मर्क्यूरी है. दोनों में सेम बॉडी को अगर फ्लोट कराओगे तो मर्क्यूरी ज्यादा अपथ्रस्ट एक्सर्ट करेगा उस बॉडी पे एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा है. तो ज्यादा डेंसिटी होगी अगर फ्लूइड की तो अपथ्रस्ट ज्यादा होगा फॉर द सेम वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड ऑफ अ बॉडी. द अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ बोयंसी. तो अपथ्रस्ट एक पॉइंट पे एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ बोयंसी. इसके बारे में भी मैं बताऊंगा. दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड थोड़ा टेक्निकल है, बट विद द डायग्राम विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली. देखो, फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे अपथ्रस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसको एक्सप्लेन किया है. लार्जर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज इन फ्लूइड, ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट. पुशिंग द एम्प्टी कैन और कॉर्क इनटू वाटर, it is experienced that upthrust on the body due to water increases as more and more volume of it is immersed into water till it is completely immersed. एक बार वो completely immerse हो गया, फिर उसको और immerse करोगे तो अपथ्रस्ट बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा. बट जब तक उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम पानी के अंदर इमर्स नहीं होता उस पर अपथ्रस्ट बढ़ते जाता है. एंड इट इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर और लिक्विड और फ्लूइड. Similarly, when bunch of feathers and a pebble of same mass are allowed to fall freely,
द पेबल फॉल्स फास्टर देन बंच ऑफ फेदर्स, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. द रीजन इज दैट अपथ्रस्ट ड्यू टू एयर ऑन पेबल इज लेस देन दैट ऑफ द बंच ऑफ फेदर्स because the volume of pebble is less than that of bunch of feathers of the same mass. However, in vacuum, both the bunch of feathers and pebble will fall together because there is no upthrust. For same volume inside the fluid, more density of fluid, greater is the upthrust. ये मैंने मर्क्यूरी वाले एग्जांपल से समझा है, इसलिए मैं फिर से नहीं समझाऊंगा. थर्ड इज द अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ बोयंसी. देखो यहाँ पे इस फिगर में ये क्लियरली बताया है. ये बॉडी इमर्स्ड है, पार्शियली इमर्स्ड है, थोड़ा पार्ट पानी के ऊपर है, थोड़ा पार्ट पानी के नीचे है. अब यहाँ पे तुम अगर देखोगे बहुत क्लियरली दिख रहा है तुम्हें एक रेड लाइन. ये रेड लाइन कहां से शुरू हो रही है? एक रेड पॉइंट से शुरू हो रही है. ये जो रेड पॉइंट है उसके बाजू में लिखा है बी. बी का मतलब होता है सेंटर ऑफ बोयंसी, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. इसको मैं एग्जैक्टली बताऊंगा ये क्या है, ठीक है. अच्छा, डब्ल्यू जो है वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज एक्टिंग फ्रॉम द पॉइंट जी, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है. एक चीज याद रखो, यहां पे बताया है फॉर अ यूनिफॉर्म बॉडी completely immersed inside a liquid, center of buoyancy coincides with the center of gravity of the body. मतलब कोई भी बॉडी जब कंप्लीटली इमर्स होती है पानी के अंदर, ये देखो ये कंप्लीटली इमर्स बॉडी है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुओयंसी अलग अलग नहीं है, एक ही पॉइंट है. कोइंसाइड कर रहे हैं वो लोग, बट इसके लिए बॉडी को कंप्लीटली इमर्स होना चाहिए और फ्लोट करना चाहिए वो. But if the body floats in liquid with its part submerged and part above the surface of liquid, then the center of buoyancy is at the center of gravity of the displaced liquid, that is at the center of gravity of the immersed part of the body, which lies below the center of gravity of the entire body. मतलब पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके नीचे सेंटर ऑफ बोयंसी होगा, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड. The weight of the body W acts downward at G, मतलब weight G पे act कर रहा है in vertically downward direction, and buoyant force acts at point B which is below G, ठीक है, such that W is equal to FG. दोनों एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं लेकिन अलग अलग पॉइंट पे, और दोनों इक्वल है बिकॉज बॉडी इज फ्लोटिंग इन वाटर स्लाइटली अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड. तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा बिफोर आई गो अहेड. काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं इस चैप्टर में, अगर ध्यान दे के पढ़ोगे तो. इफ़ यू जस्ट वांट टू फिनिश द सिलेबस और फॉर्मेलिटी करना चाहते हो, यू विल मिस आउट दीज थिंग्स. तुम्हें नहीं समझ में आएगा ये सारी चीज़ें क्या है. बट हाँ, अगर ध्यान से पढ़ोगे, देखो अभी लास्ट मोमेंट अगर है, तुम्हारी एग्जाम नज़दीक है, एंड यू फील दैट ओ सो मेनी टेक्निकल स्टफ एंड हाउ विल आई do it. If you just listen to my lecture properly, your doubts will be cleared, your concepts will be cleared for sure. ठीक है, चलो मैं एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें. Let me just erase a little bit of, oops, little bit में तो पूरा कंटेनर ही इरेज हो गया. little bit of liquid, ठीक है. चलो अब ये है ओरिजिनल लेवल ऑफ लिक्विड. रिमेंबर, this is original liquid level, ठीक है. जैसे ही मैंने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को सबमर्ज किया, एक ऑब्जेक्ट को सबमर्ज किया, पता है क्या होगा? ड्यू टू the submersion of this object inside the liquid, the level of liquid will rise. क्या होगा? लिक्विड का लेवल ऊपर जाएगा, और मैं जो लिक्विड का लेवल जो ऊपर जाएगा उसको मैं बोलूंगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड. तो ये ओरिजिनल लेवल ऑफ लिक्विड है. अब लिक्विड यहां पे आ जाएगा, सपोज तुम बोलोगे सर ये तो सिंक कर रहा है. देखो ये वापस ऊपर आ जाएगा बिकॉज ये फ्लोट करने वाला ऑब्जेक्ट है, तो ये वापस ऊपर आ जाएगा. लेकिन हाँ, लिक्विड के लेवल पे हम फोकस कर रहे हैं. लिक्विड का जो फाइनल लेवल है, फाइनल लिक्विड लेवल, फाइनल लिक्विड लेवल यहाँ पे आ गया. अब मैं कुछ मोमेंट के लिए जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको मैं हटाना चाहूंगा ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए.
क्या समझा रहा हूं मैं? ठीक है, ओके। तो डू यू सी द चेंज इन द लेवल ऑफ लिक्विड व्हेन समथिंग इज इमर्स्ड इन इट? देयर इज एन ऑब्जेक्ट समझो कि ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है और तुम्हें नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट को इमर्स किया है। तो लिक्विड का जो ओरिजिनल लेवल था और फाइनल लेवल था उसमें डिफरेंस है। ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड, आगे ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड वर्ड या टर्मिनोलॉजी काफी यूज करने वाला हूं मैं, इसलिए इसको समझ लेना, ये है डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है इसका भी तो खुद का कुछ वेट होगा। इसका जो वेट होता है ना, वो कहाँ पे एक्ट करेगा? ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर पे। अच्छा, इसका सेंटर कहाँ है? तो इसका सेंटर ढूंढने के लिए हम लोग एक रेक्टेंगल बना देंगे यहाँ पे। लेट मी हाईलाइट एंड मेक इट विथ दिस येलो पार्ट। ये जो येलो पार्ट है ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, ठीक है। और उसका सेंटर मैं ये मार्क ब्लैक इंक से बता देता हूँ, ये रहा। और यहाँ पे क्या एक्ट करता है पता है? ये पॉइंट का नाम क्या है? ये पॉइंट है बी। ये क्या है? इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ बोयंसी। सेंटर ऑफ बोयंसी, ठीक है। ये है सेंटर ऑफ बोयंसी। सेंटर ऑफ बोयंसी का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो तुम्हें मैंने बताया। अच्छा, अब सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट कैसे फ्लोट कर रहा है? ऐसे, मतलब इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द लिक्विड, कंप्लीटली इमर्स्ड है लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी? इट विल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ बोयंसी। ये जी यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये क्या है? डब्ल्यू। और ये क्या है? एफ बी। और इस केस में क्या होगा? एफ बी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू, इसलिए तो फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन 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 अगर मैं और एक कंटेनर ले लेता हूं जिसमें, आई विल शो यू एग्जैक्टली, डोंट वरी, जिसमें ऑब्जेक्ट ऐसे फ्लोट कर रहा है, सम पार्ट ऑफ इट इज अबाउ द लिक्विड। अच्छा, यहां पे जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है वो ये है, ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। तो ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का सेंटर है वो है यहां पे सपोज, और उसी के नीचे होता है तुम्हारा उसी के नीचे होता है, उसके ऊपर होता है, एक मिनट देख लेते हैं बी और जी की पोजीशन। हाँ, उसके ऊपर होता है, आई एम सॉरी। यस, तो नीचे वाला जो पॉइंट है दैट इज बी, सेंटर ऑफ बोयंसी, और ऊपर वाला जो पॉइंट है दैट इज जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ क्या एक्ट करता है? वेट। और सेंटर ऑफ बोयंसी से ऊपर की तरफ क्या एक्ट करता है? बोयंट फोर्स, ठीक है। ये तुम्हारा रेड डॉट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ब्लैक डॉट सेंटर ऑफ बोयंसी है। ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए some part of the body is above the surface of liquid and some part is below it. And in this case, remember that buoyant force is greater than the weight of the body, इसलिए तो वो ऐसे फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फ्लोटिंग है, लेकिन दोनों फ्लोटिंग में जो टेक्निकल डिफरेंस है दैट इज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ बोयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। समझ में आया इतना पार्ट? अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि जब बॉडी सिंक करेगा तब क्या होगा? तब तो वेट ऑफ द बॉडी विल बी ग्रेटर देन बुओयंट फोर्स। हाँ, लेकिन तब भी बॉडी कंप्लीटली इमर्स्ड है। कंप्लीटली इमर्स पोजीशन में ये जो फर्स्ट पोजीशन है सेंटर ऑफ बोयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, दैट इज दे आर कोइंसाइडिंग, दैट विल रिमेन ट्रू। So for any position of a body which is completely immersed in the liquid, center of buoyancy and center of gravity will always coincide. But if the body is floating some part of it above the liquid surface, then center of gravity will be above the center of buoyancy. Buoyant force will act through the center of buoyancy, that is center of gravity of the displaced liquid, and weight of the body will act from the center of
ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? सारी चीजें मैंने अपने तरीके से बताई हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब है रीजन ऑफ अपथ्रस्ट। We have read that a liquid contained in a vessel exerts pressure at all points and in all directions. The pressure at a point in liquid is same in all directions, that is upward, downward, sideways, and it increases with depth inside the liquid. ये सारी चीजें मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में, मतलब तुम्हारा प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो जो चैप्टर था उसमें मैंने क्लियर की है। इसलिए इफ यू आर वंडरिंग कि मैंने वो चैप्टर का वीडियो क्यों पहले बनाया, बिकॉज उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे सिर्फ हम अपथ्रस्ट पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन फ्लूइड प्रेशर की कुछ चीजें जो रीजन है अपथ्रस्ट का, वो तो हमें प्रीवियस चैप्टर में समझ में आ गई थी कि अगर कोई भी लिक्विड को वेसल में कंटेन करोगे तो इट विल exert pressure at all points and in all direction, and pressure at the same depth in all direction is always the same. ये हमने कैरेक्टरिस्टिक जो लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर है ना उसमें पढ़ा था। The pressure at a point in liquid is same in all directions, upward, downward, sideways, etc. It increases with depth inside the liquid. Pressure increases with the depth inside the liquid. When a body, say a block of area of cross section A, is immersed in a liquid, एक बॉडी जिसका जो एक ब्लॉक के शेप का है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, जब उसको हम लिक्विड के अंदर इमर्स करेंगे, the pressure P2 exerted upward on the lower face of the block, which is at a greater depth, is more than pressure P1 exerted downwards on the upper face of the block. देखो यहाँ पे बॉडी को completely immerse किया है, and there are two pressures: pressure exerted on the upper block by the liquid which is above the upper block, pressure exerted on the downward part of the block which is at a greater depth, and this pressure is exerted by the liquid which is below the block. मतलब liquid above the block and liquid below the block are exerting pressure on the block, on the upper and bottom surfaces of the block. ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताओ P1 बड़ा होगा या P2 बड़ा होगा? ऑफ कोर्स P2 ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि P2 इज एट अ ग्रेटर डेप्थ। तो ग्रेटर डेप्थ पे लिक्विड प्रेशर बढ़ता है, मतलब P2 विल बी ग्रेटर देन P1। मतलब ये जो बॉडी है ना, इट विल एक्सपीरियंस अनइक्वल प्रेशर ऑन इट्स टॉप एंड बॉटम सरफेसेस। अच्छा, व्हाट अबाउट द लेफ्ट एंड राइट सरफेसेस और फ्रंट एंड बैक सरफेसेस? द pressure on left and right surfaces or front and back surfaces will be the same, because the pressure at the same depth is always the same inside the liquid. मतलब pressure at the same depth तो change नहीं होगा, but P2 और P1 में definitely difference होगा because they are at different depths. So if P2 is greater than P1, if P2 is greater than P1, that means the net upward force, net upward force will be greater. If the net upward force is greater, then the body will tend to move upward. मतलब उस पे अपथ्रस्ट, ये जो नेट अपवर्ड फोर्स है, नेट अपवर्ड प्रेशर है, वही तो अपथ्रस्ट है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक नोट दिया है, if lamina or thin sheet is immersed in a liquid, the pressure on both its surfaces will be nearly the same. So the liquid will exert negligible upthrust on it, causing it to sink into the liquid due to its own weight. मतलब अगर एक लैमिना या थिन शीट को पानी में डाला तो वो अपने ही वेट से नीचे सिंक हो जाएगा, क्योंकि लैमिना इतना थिन है कि P1 और P2 दोनों इक्वल हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसका जो खुद का वेट है उसको नीचे खींच लेगा और लैमिना नीचे सिंक हो जाएगा। बट कोई ऐसा ब्लॉक है जिसकी एक पर्टिकुलर हाइट है, जब उसको तुम सबमर्ज करोगे तो डाउनवर्ड फेस पे जो प्रेशर है वो हमेशा अपवर्ड फेस के प्रेशर से ग्रेटर रहेगा, ड्यू टू the laws of liquid pressure. That's a characteristic of liquid pressure, right? It increases with the depth. So this is the reason for upthrust. Next topic is upthrust is equal to the weight of the displaced liquid. ये इसका mathematical proof है, और ये कहीं ना कहीं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की शुरुआत है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमें यही पढ़ना है। When a body is immersed in a liquid, upthrust on it due to liquid is equal to the weight of the liquid displaced.
लिक्विड डिस्प्लेस का मैंने ऑलरेडी तुम्हें मीनिंग बता दिया है थोड़ी देर पहले, ठीक है। इसका प्रूफ देख लो। कंसिडर अ सिलिंड्रिकल बॉडी पी क्यू आर एस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। तो ये जो लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है उसमें एक सिलेंडर को हमने सबमर्ज किया है। ये सिलेंडर का हाइट है H2 माइनस H1, ठीक है। मतलब समझो कि सिलेंडर का जो अपर फेस है PQ, इट इज एट अ डेप्थ H1 फ्रॉम द फ्री सरफेस, एंड सिलेंडर का जो बॉटम सरफेस है इट इज एट अ डेप्थ ऑफ H2 फ्रॉम द फ्री सरफेस। और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या है वो भी बता देता हूं मैं। क्रॉस सेक्शनल मतलब ये जो सर्कुलर पार्ट है ना, ये जो सर्कुलर पार्ट उसका एरिया। एक मिनट, वो भी मैंने अच्छे से नहीं बताया, और अच्छे से बता देता हूँ। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये वाला एरिया। कितना है क्रॉस सेक्शनल एरिया? ए, ठीक है। सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है उसको हमने इमर्स किया है लिक्विड के अंदर। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? रो। अपर सरफेस is at a depth h1, lower surface rs is at a depth h2. At depth h1 the pressure on the upper surface p1 in the downward direction is h1 rho g। लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला कौन से चैप्टर में पढ़ा था? इसके पहले वाले चैप्टर में। आया काम? राइट, इसीलिए फोर्थ चैप्टर फिफ्थ से पहले पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तुम्हें लगेगा एग्जाम के लिए ये आ रहा है तो उसका क्यों वीडियो डाला, इसी वजह से डाला, ठीक है। P1 इज इक्वल टू H1 रो जी। अच्छा, डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन द अपर सरफेस PQ। थ्रस्ट हमें पूछा है, याद रखना, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। सो थ्रस्ट को यहाँ पे F1 लिया है इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। प्रेशर इज H1 रो जी on the upper surface multiplied by the cross sectional area A. At depth H2 the pressure on the lower surface RS is P2 which is H2 rho g। तो upward thrust lower surface पे कितना होगा? H2 rho g A, ठीक है। अब horizontal thrust at various points on the vertical sides of the body gets balanced because of liquid pressure is same at all the points at the same depth। मतलब horizontal thrust तो सारे एक दूसरे के साथ cancel out हो जाएंगे, लेकिन the vertical thrust, that is the downward thrust at downward thrust at upper surface and downward thrust at upward thrust at bottom surface are different, right? That is due to the difference in height. So F2, that is upward thrust at the bottom surface, is greater than F1 because H2 is greater than H1, and therefore the body will experience a net upward force, ठीक है। सो रिजल्टेंट अपवर्ड थ्रस्ट और अप थ्रस्ट और बोयेंट फोर्स ऑन द बॉडी FB is equal to F2 minus F1 which is H2 rho GA minus H1 rho GA। इसमें एरिया को कॉमन निकाला है और रो और जी को कॉमन निकाला है, तो अंदर क्या बचा? H2 minus H1। अब याद रखो, एरिया मल्टीप्लाइड बाय H2 minus H1, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था H2 minus H1 is the height of the cylinder, that is height of the body which is submerged in the liquid, multiplied by the area। height multiplied by area of cross section क्या होता है? वॉल्यूम। तो height multiplied by area of cross section को हमने वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी submerged in the liquid। so upthrust का फॉर्मूला मिल गया V rho g। Please don't get confused with these two formulae। The first formulae in the previous chapter which we studied was the formula for liquid pressure at a depth। Liquid pressure at a depth, liquid pressure at a depth is H rho g, but upthrust is V rho g। V rho g, V is the volume of the body submerged, not the volume of liquid, huh? Rho is the density of the liquid, not the density of body, and g is acceleration due to gravity। V, फिर से बोलता हूं, V is volume of the body submerged, rho is the density of the liquid in the body in which the body is submerged, and g is the acceleration due to gravity। ओके, सो इसके अलग अलग फॉर्मेट है। जो पहला फॉर्मेट मैंने बताया यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा फॉर्मेट, यहां
वो लोग ने बोला है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, वी का वी का मतलब, और यहां बोला है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इससे एक बात समझ में आई तुम्हें? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम किसी सॉलिड का इमर्स होगा लिक्विड के अंदर, उतना ही ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। अगर जितना ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उतना ज्यादा वी रो जी, वी रो जी मतलब वी रो जी ज्यादा मतलब अपथ्रस्ट ज्यादा। मतलब तुम किसी बॉडी के ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम को लिक्विड के अंदर इमर्स करते जाओगे तो उस पर अपथ्रस्ट बढ़ेगा, जो हमने पहले ही वो कैन, एम्प्टी कैन को जब पानी के अंदर पुश किया था तभी ऑब्जर्व किया था। ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, उसका और एक वर्जन दिखाता हूं मैं तुम्हें। दूसरा वर्जन है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो मास होता है यार। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तुम्हें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 8th में पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। Mass is density into volume, right? We have density of liquid here, we have volume of liquid displaced here. तो m, तो हमें मास मिल गया, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास ऑफ बॉडी मत ले लेना भाई, ठीक है? अच्छा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड भी तो बोल सकते हैं। So upthrust is nothing but the weight of the liquid displaced by the submerged part of the body. ये उसका फाइनल डेफिनेशन है। और तुम्हें जब न्यूमेरिकल्स करने आएंगे तो तुम्हें ये सारी डेफिनेशंस, ये सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे अपथ्रस्ट का। अपथ्रस्ट का सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, उसके 4 फॉर्मूले। पहला, वी रो जी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा, वी रो जी, जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स नहीं लिखना है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस लिखना है, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीसरा, वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और चौथा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी। ये डायरेक्ट है फॉर्मूला। ये क्या है? अपथ्रस्ट। ठीक है, समझ में आया? अपथ्रस्ट का पूरा फॉर्मूला प्लस मैथमेटिकल प्रूफ मैंने तुम्हें बताया। इसके ऊपर क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। एक चीज फिर से यहां पे वो लोग ने बताई है, प्लीज नोट इट डाउन। If the body is completely immersed in liquid, the volume of liquid displaced will be equal to its own volume and upthrust then will be maximum. अपथ्रस्ट मैक्सिमम कब होगा? जब पूरी की पूरी बॉडी को लिक्विड में इमर्स कर दो। इस पोजीशन पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस विल बी इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम, मतलब बॉडी के वॉल्यूम जितना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा और अपथ्रस्ट मैक्सिमम हो जाएगा। Although the above result is derived for a cylindrical body, हमने cylindrical body consider की है, but it is equally true for body of any shape and size, not even uniform shape. नॉन यूनिफॉर्म शेप के लिए भी ये प्रूफ इतना ही ट्रू है। कौन सा वाला? ये फॉर्मूला अपथ्रस्ट वाला, वी रो जी वाला, ये वाला प्रूफ। ठीक है, सो डोंट थिंक ये तो सिर्फ सिलेंडर के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग अपथ्रस्ट। From the above discussion, it is clear that the magnitude of upthrust depends on two factors. Number one, volume of body submerged in liquid or fluid. मतलब greater the volume of body submerged in the fluid, greater will be the upthrust on it. And density of fluid in which the body is submerged. Greater the density of fluid, greater will be the upthrust it will exert on the body submerged in it. Effect of upthrust. The effect of upthrust is that the weight of the body immersed in a liquid appears to be less than its actual weight. जैसे एक वेल से हम लोग बकेट को जब निकालते हैं, जब तक बकेट वेल के अंदर है, पूरा सबमर्ज्ड है, तब तक इतना आसानी से वो ऊपर आता है। जैसे ही बकेट ने वाटर की सरफेस को छोड़ा, वो हैवी हो जाता है, उसको ऊपर खींचने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। बिकॉज जब तक वो बकेट
वाटर के सरफेस के नीचे था उसके ऊपर अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा था। ये अपथ्रस्ट कौन एग्जर्ट कर रहा था? द लिक्विड, द वाटर इन विच द बकेट वाज सबमर्ज्ड। बट जैसे ही वो बकेट पानी के सरफेस से ऊपर आ गया, अपथ्रस्ट जीरो हो गया। अब एयर है उसके नीचे, लेकिन एयर तो अपथ्रस्ट कितना एग्जर्ट करेगा? नेग्लिजिबल। तो इसलिए बहुत एफर्ट लगता है जब एक बार बकेट पानी के ऊपर आ जाता है उसको खींचने के लिए। Similarly, when pulling a fish out of water, it appears lighter inside the water as compared to when it is out of water. Similarly, a body weighed by a sensitive spring balance will weigh slightly less in air than in vacuum due to upthrust of air on the body. वैक्यूम में बॉडी का एक्चुअल वेट समझ में आता है, एयर में स्लाइटली हल्का लगता है, स्लाइटली नेग्लिजिबल। Archimedes principle, and here you go, you are studying about the great Archimedes. कौन है ये आर्किमिडीज, क्या किया था उसने? मैंने क्लास 8th में भी इसके ऊपर बात की थी। यूरेका, यूरेका याद है? नहीं याद है? ठीक है, चलो आर्किमिडीज की स्टोरी तो हम लोग बाद में बताते रहेंगे। मैंने किसी वीडियो में बताई भी है, बट एनीवेज अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे लगता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल की जो टेक्निकलिटीज है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे हम लोग। When a body is immersed in a liquid, it occupies the space which was earlier occupied by the liquid. जब किसी बॉडी को लिक्विड में इमर्स करते हैं तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है जो पहले लिक्विड ने ऑक्यूपाई किया था। मतलब अब वो जगह वो बॉडी ने ले ली और वो लिक्विड अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, हट जाएगा, राइज हो जाएगा। So that volume of liquid displaced by the body is equal to the volume of submerged part of the body. So the body experiences an upthrust equal to the weight of the liquid displaced by it. मैंने यहाँ भी तो बताया upthrust is equal to the weight of the liquid displaced by the submerged part of the body. हमने पहले ही मैथमेटिकल प्रूफ में ये डिराइव कर लिया है, लेकिन ये चीज हमारे डिराइव करने से 2500 ईयर्स पहले आर्किमिडीज ने एक्सपीरियंस किया। आर्किमिडीज experienced it long ago, around 2500 years ago. Archimedes, when he got into his bathtub, जब उसने एक पैर डाला बाथटब में तो बाथटब का पानी थोड़ा ऊपर आया, दो पैर डाले तो बाथटब का पानी और ऊपर आया, फिर वो नीचे बैठा तो बाथटब का पानी और ऊपर आया। जब उसने पूरी बॉडी को इमर्स कर दिया बाथटब के अंदर तो पानी ओवरफ्लो हो गया बाथटब में से, और उसको चमका, मतलब उसको समझ में आया कि ये तो कुछ मेरे बॉडी के वॉल्यूम जो पानी के अंदर इमर्स हो रहा है और जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। और उसने ये भी फील किया कि वो जितना पानी के अंदर जा रहा था उतना वो उसको अपना बॉडी लाइट फील हो रहा था। मतलब बॉडी उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, जितना बॉडी वो बॉडी पानी के अंदर सबमर्ज कर रहा था। तो यहीं से तो ये अपथ्रस्ट के आइडिया का या फ्लोटेशन के आइडिया का बर्थ हुआ। फ्लोटेशन तो पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाए थे। सबसे पहले उसको समझने वाला या फिर समझाने वाला या फिर उसको अप्लाई करने वाला जो आदमी था वो था आर्किमिडीज, ग्रीक फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर नहीं एस्ट्रोनॉमर, आई एम सॉरी, एस्ट्रोलॉजर, मे बी एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, ही वाज अ जीनियस, आर्किमिडीज। ठीक है, तो जैसे ही उसको समझ में आया कि यार ये तो मैं जितना बॉडी को इमर्स कर रहा हूँ बॉडी के वॉल्यूम को, उतना ज्यादा वो बॉडी एक्सपीरियंस कर रहा है। मतलब जो अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब जो अपथ्रस्ट है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी। मोर द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी, मोर विल बी द अपथ्रस्ट इट विल एक्सपीरियंस, राइट? सो जैसे ही उसको ये समझ में आया वो बाथटब से निकला और एक्साइटेड होके चिल्लाने लगा, यूरेका यूरेका, मतलब आई गॉट इट, आई गॉट इट, और वो भागने लगा और गया स्ट्रीट पे, रोम की स्ट्रीट पे भागने लगा नंगा। और लोग एकदम पागल हो गए, बच्चे बच्चों को घर पे बुला लिया, मतलब सुबह सुबह ये सब मत देखो यार। और गया सीधा किंग के पास भागते हुए, नंगा नंगा बुढ़ा, आर्किमिडीज। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आर्किमिडीज सर, बट स्टिल आपकी ये स्टोरी मुझे बतानी पड़ेगी, आपने ये कांड किए थे। और पहुंचा वो किंग के पास तो किंग तो अपने राजा जो था ग्रीक का, तभी जो भी किंग था, लियोनाइडस,
क्रिटिस विटिस क्या पता नहीं क्या नाम होते हैं इनके। ठीक है, तो वो खा रहा था अंगूर, उसके वो जो होती है ना क्वीन, अरे क्या बोल, क्वीन नहीं यार, वो उसकी जो मेड्स होती है, दासी, वो उसको खिला रही थी अंगूर ऐसे, वो खा रहा था अंगूर, और सामने आ गया नंगा लंगूर। आई एम सॉरी फॉर दैट आर्किमिडीज सर। हाँ, बट उसको तो ऐसे ही लगे कौन है बुढ़ा नंगा, सुबह सुबह यही देख, कपड़े डालो यार कोई इस पे। तो उसको एक कपड़ा वपड़ा डालते हैं वो लोग, और फिर वो बताता है यूरेका यूरेका, अरे क्या हो गया यूरेका, सुबह सुबह क्या दिखा रहा है यार, क्या मिल गया तेरे को। उसने बोला ऐसा ऐसा है सर, मैंने ये ढूंढ लिया है कि आपकी जो शिप है, बड़ी शिप, उसको कैसे हम फ्लोट कराएंगे। एंड आई फाउंड इट, कि थोड़ा ज्यादा सबमर्ज करेगी अगर शिप पानी के अंदर, तो वो ज्यादा अपथ्रस्ट एक्सर्ट होगा और वो ज्यादा अच्छे से फ्लोट करेगी। तो ये पूरा इंसिडेंस था इसके पीछे। अब हमको सिर्फ इसकी टेक्निकलिटीज से मतलब है। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थोड़ी डिलीट हो गई है सिलेबस से, बिकॉज अब तुम बड़े हो गए हो। एनीवेज, the volume of liquid displaced by the body is equal to the volume of submerged part of the body. So the body experiences an upthrust equal to the weight of the liquid displaced by it. It is the upthrust due to which a body immersed in liquid appears to be of weight less than its real weight. The apparent loss in weight is equal to the upthrust on the body, and this is called the Archimedes principle. Thus, Archimedes' principle states that when a body is immersed partially or completely in a liquid, it experiences an upthrust. जब किसी भी बॉडी को पार्शियली या कंप्लीटली लिक्विड में इमर्स करोगे तो वो अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा, विच इज इक्वल to the weight of the liquid displaced by it. Upthrust is equal to weight of the liquid displaced by the submerged part of the body. Same thing Archimedes principle ने 2500 years पहले बोला था. This principle applies not only to liquid but it applies equally well to gases also. इसलिए इतना ज्यादा हम लोग इतना इसको इंपॉर्टेंस देते हैं. इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है. दो एक्सपेरिमेंट है, ईदर ऑफ टू एक्सपेरिमेंट से हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल को वेरीफाई कर सकते हैं. पहला एक्सपेरिमेंट, हमने दो सिलेंडर लिए, सिलेंडर ए सिलेंडर बी, ये इसका सेटअप है, देख लो ध्यान से, मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है. सिलेंडर ए इज सॉलिड, ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसमें ऐसा लगा है कि कोई लिक्विड है, नहीं, ये पूरा सॉलिड सिलेंडर है. एंड सिलेंडर बी इज हॉलो. सस्पेंड द टू सिलेंडर्स फ्रॉम द लेफ्ट आर्म ऑफ अ फिजिकल बैलेंस. Okay, keeping the solid cylinder A below the hollow cylinder B. Then balance the beam by keeping weights on the right arm of the balance. In this situation, both cylinders A and B are in air. ठीक है, तो मतलब पहले सिलेंडर ए और बी को ऐसे हैंग करके, लिक्विड में नहीं डालना है उसको, हैंग करके तुम सिर्फ बीम बैलेंस पे उसका वेट चेक कर लो. ठीक है, वेट चेक करने के बाद जो सॉलिड सिलेंडर है उसको कंप्लीटली इमर्स करो वाटर के अंदर, कंटेन्ड इन बीकर डी, प्लेस्ड ऑन द बेंच सी एज शोन इन द फिगर. ठीक है, बाद में सिलेंडर ए को, सॉलिड सिलेंडर को बीकर के अंदर डालना है, कंप्लीटली इमर्स करना है, लेकिन टेक केयर दैट सिलेंडर ए डज नॉट टच द साइड्स और बॉटम ऑफ द बीकर. सिलेंडर ए को कंप्लीटली इमर्स करना है लेकिन उसको बॉटम पे टच नहीं होने देना है. ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि सिलेंडर ए का जो वेट है वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब वो बीम, तुम्हारा पूरा ऑब्जर्वेशन खराब हो जाएगा. अच्छा, तुमने जब उसको सस्पेंड किया पानी के अंदर, तो इट विल, यू विल ऑब्जर्व दैट वेट ऑफ सिलेंडर है ए हैज डिक्रीज्ड. मतलब वाटर में सस्पेंड करने से ही उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट एक्सर्ट होता है, और वो अपथ्रस्ट की वजह से उसका वेट थोड़ा कम हो जाता है. So left arm of the balance rises up. Obviously, the loss in weight is due to the upthrust of water in cylinder A. Now pour water gently into hollow cylinder B till it is completely filled. मतलब वो जो ऊपर वाला सिलेंडर है ना, हॉलो सिलेंडर, उसमें तो खाली जगह है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी भर दो. ठीक है, पानी भर दो उसके अंदर पूरा. सिलेंडर ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, दे शुड बी इक्वल इन वॉल्यूम. तो पूरा सिलेंडर ए का जो वॉल्यूम है वो पूरे सिलेंडर बी का वॉल्यूम है. सिर्फ सिलेंडर बी एम्प्टी है, हॉलो है, उसके अंदर जो खाली जगह है उसमें अब तुम्हें लिक्विड डाल देना है. अब तुम जब लिक्विड डालोगे ना, तो क्या होगा पता है, द बीम बैलेंसेस अगेन. मतलब सिलेंडर ए का वेट कितना कम हुआ था, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम. उसके खुद के वॉल्यूम जितना लिक्विड का वेट
जितना वेट सिलेंडर ए ने लूज किया था, सिलेंडर बी में वापस हमने जब पानी भर दिया, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, तो वापस बीम बैलेंस हो गया। और हम प्रूव कर सकते हैं इससे कि whenever a body is immersed in a liquid, it experiences a upthrust in upward direction, which is equal to the weight of liquid displaced by it when it is completely immersed, equal to the its own weight, ठीक है। Thus it is clear that buoyant force acting on the solid cylinder is equal to the weight of the water filled in hollow cylinder B. And since the cylinders A and B both have equal volume, so weight of water in the hollow cylinder B is just equal to the weight of the water displaced by cylinder A. Hence the buoyant force acting on cylinder A is equal to the weight of the water displaced by it, and it verifies Archimedes principle. ये थोड़ा सा टेक्निकल था एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट 2 बहुत इजी है, जो तुमने क्लास 8 में शायद पढ़ा हुआ है। एक सॉलिड लेना है, मेटालिक पीस, सपोज यहाँ पे सॉलिड है, और एक यूरेका कैन लेना है। अच्छा, इस सॉलिड को एक थ्रेड से सस्पेंड करना है एक स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है। अब यूरेका कैन लेना है, यूरेका कैन के नीचे एक मेजरिंग सिलेंडर रखना है, और ये सॉलिड जो स्प्रिंग बैलेंस से सस्पेंडेड है उसको तुम्हें पूरा वाटर के अंदर सस्पेंड करना है। जब पूरा सॉलिड वाटर के अंदर इमर्स हो जाएगा तो कुछ पानी यूरेका कैन से बाहर फ्लो आउट होगा और स्पाउट के थ्रू निकल के मेजरिंग सिलेंडर में भर जाएगा। मतलब ये क्या है? दिस इज डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड कहाँ पे है? ये रहा डिस्प्लेस्ड लिक्विड, दिस इज डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। अब तुम एक चीज नोट करो, जब तुमने ये सॉलिड का वेट एयर में मेजर किया था तो वो 300 आया था, 300 ग्राम्स। जब तुमने उसको पूरा कंप्लीटली लिक्विड में या वाटर में इमर्स किया तो उसका वेट 200 ग्राम्स हो गया। मतलब वेट लॉस हुआ बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट कितना है? अपथ्रस्ट इज एक्चुअल वेट इन एयर माइनस द वेट इन वाटर। कितना है? 100 ग्राम्स। अपथ्रस्ट कितना है? 100 ग्राम्स, ठीक है। अच्छा, अब ये अपथ्रस्ट की वजह से यहाँ पे वाटर डिस्प्लेस हुआ है। वो वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है? 100 ml। सी वी नो दैट जो वाटर की डेंसिटी है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सी 100 ml इज ऑल्सो 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब 100 ml वाटर का जो वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू 100 ग्राम। तो जितना अपथ्रस्ट किसके ऊपर, ये सॉलिड के ऊपर एग्जर्ट किया वाटर ने, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस भी हुआ है। और ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सबसे इजी, कि द अपथ्रस्ट acting on a body which is completely immersed in a liquid is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed or submerged part of the body, ठीक है। समझ में आया? तो ये वाला एक्सपेरिमेंट है जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को प्रूव करता है। Solids with density rho greater than that of density of liquid sink, while solid with density rho less than the density of liquid float in it. देखो, फ्लोटेशन को थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। मैं तुम्हें फ्लोटेशन को सिंप्लीफाई करके बताना चाहता हूँ। एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है। अब थोड़ा सा जो अपथ्रस्ट है ना, उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा साइड में रखेंगे और फ्लोटेशन को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कोई बॉडी ऐसे फ्लोट कर रहा है, उसका सम पार्ट ऑफ द बॉडी इज अबाउ द सरफेस ऑफ लिक्विड। यहाँ पे दिख रहा है, फ्लोट तो कर रहा है। यहां पे हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ बॉडी सॉलिड। दूसरे एग्जाम्पल में कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड है, जिसमें एक बॉडी फ्लोट कर रहा है, बट इट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इनसाइड द वाटर, बट इट इज स्टिल फ्लोटिंग। इन दिस केस द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सॉलिड और बॉडी। एंड तीसरा केस,
तीसरे केस में एक बॉडी सिंक हो गया है। जब एक बॉडी सिंक हो जाता है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज स्मॉलर देन द डेंसिटी ऑफ बॉडी और सॉलिड। ये बी नहीं है, एस होना चाहिए, सॉलिड। ठीक है, मतलब जब सिंक होता है तो बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से बहुत ज्यादा है। मेटल का पीस सिंक होता है तो मेटल के पीस की पूरी डेंसिटी जो है वो लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है। बट जब कोई बॉडी ऐसे फ्लोट करता है तो उनकी और उसकी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड सेम रहती है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ सॉलिड से जब वो बॉडी, some part of the body is floating above the surface of liquid. In case of wood or cork it happens, we see it very clearly. In case of a metal tin can, empty metal tin can, अब वो तो मेटल से बना है तो सिंक क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी जो एवरेज डेंसिटी है दैट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अंदर तो खाली हवा भरी है। द सेम इज द केस विद द मेटल bowl, okay, and the same is the case with ship. शिप के केस में भी यही होता है। शिप क्यों फ्लोट करती है? क्योंकि शिप अंदर से हॉलो है, अंदर पूरा एयर है, और शिप की एवरेज डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। जबकि आयन नेल, वो भी आयन से बना है, शिप भी आयन से बना है। शिप फ्लोट करता है, आयन नेल सिंक करता है, क्योंकि आयन नेल में कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है। उसकी डेंसिटी सिर्फ आयन की डेंसिटी है, इसलिए वो सीधा सीधा फ्लोट करता है, उसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है। So that is the solid bodies with density equal or greater or lesser than the liquid. Take an iron nail and take a piece of cork, both of same mass. First, place iron nail on the surface of water contained in a cup. The nail sinks. It implies that force of gravity on iron nail pulling it downward is greater than upthrust. ठीक है? Now place the piece of cork on the upthrust on the surface of water, and the cork floats. It means that upthrust on cork when fully immersed in is more than that on iron nail, because the density of water is more than the density of cork, while the density of water is less than that of iron nail. तो डेंसिटी और अपथ्रस्ट दोनों कॉन्सेप्ट से हम लोग फ्लोटेशन को समझ रहे हैं। Take few solid bodies of different materials of known density and place them on the surface of water. It is observed that if density of the material of a body is equal to or less than the density of water, it floats, implying that upthrust on the body due to its submerged part is equal to its own weight. Different bodies float on water with their different volumes inside the water. But if the density of body is equal to density of water, then body floats with whole of its volume immersed inside the water. मैंने अभी बात की थी ये। या फिर अगर डेंसिटी of body is less than the density of water, some part of the body will float above the surface of water. Only the body floats with only that much volume inside the water by which the upthrust on the body balances its weight. On the other hand, if the density of material of body is more than the density of water, the body sinks because the upthrust due to water on the body is less than its own weight. So bodies of densities greater than that of liquid sink in it, while the bodies of average density equal to or smaller than that of the liquid float on it. An empty tin can or iron ship floats on water because its average density is less than density of water. Average density of a hollow body is the ratio of the mass of the body, that is mass of material of the body plus mass of air enclosed in it, divided by its volume, which is less than the density of liquid in case of ship or a empty tin can. Right? तो ये था तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, दैट वाज अपथ्रस्ट। उसको इतना हमने डाइसेक्ट कर दिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उसका प्रूफ पढ़ लिया, फॉर्मूला निकाल लिया अपथ्रस्ट का, कि मुझे लगता है कि जो डिफिकल्ट पार्ट था इस चैप्टर का वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका सेकेंड पार्ट इसके बाद वाले वीडियो में मैं डालूंगा, दैट इज डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एंड इट्स रिलेशन विथ मुझे लगता है अपथ्रस्ट, आई एम नॉट श्योर बट स्टिल, हाँ तो वो इसके बाद वाला पार्ट है। ठीक है, so we are going to do it next. See you in the next video. Bye bye.